آج ویو 360 میں دنیا میں پناہ گزینوں کی تعداد 7 کروڑ 80 لاکھ کی ریکارڈ سطح پر، اور امریکہ آنے کی اجازت ملنے والے پناہ گزینوں کی تعداد تاریخی طور پر کم ترین۔ امریکی تاریخ کی ایک تباہ کناک کی پہلی برسی پر ایک نظر ان کوششوں پر جو علاقے کے مسلمان اور پاکستانی رہائشیوں نے اپنے پڑوسیوں کی مدد کے لیے کی، اور امریکی صدور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ریٹائر کیوں نہیں ہوتے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اقوام متحدہ کے سال 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت تقریباً 2.5 کروڑ سے زائد افراد دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ اس تعداد کا نصف سے زائد 18 سال سے کم عمر ہیں۔ اس سال جب یہ ڈیٹا جاری کیا گیا تو انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے صدر ڈیوڈ ملبینڈ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں اس انسانی بحران کو بین الاقوامی کمیونٹی کی ناکامی کہا گیا۔ کئی دہائیوں تک امریکہ پوری دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ پناہ گزینوں کو آنے کی اجازت دیتا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس پالیسی میں تبدیلی کی، جس کے تحت سال 2020 کے لیے صرف 18,000 پناہ گزینوں کو امریکہ میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی نئی پالیسی کے تحت، جس پر عمل درآمد کا آغاز 3 نومبر سے ہو چکا، انتظامیہ نے مذہبی وجوہ کی بنا پر پناہ حاصل کرنے والوں کے لیے 5,000 افراد کا کوٹا مختص کیا ہے۔ 4,000 افراد کا کوٹا ان عراقیوں کے لیے ہے جنہوں نے عراق جنگ میں امریکہ کی معاونت کی، جبکہ 1,500 افراد کا کوٹا لاطینی امریکہ کے 3 ملکوں گواٹیمالا، ہونڈرس اور ایل سلواڈور کے شہریوں کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی 7,500 ایسے پناہ گزینوں کو امریکہ آنے کی اجازت دی جائے گی جن کی سفارش امریکی سفارتخانوں کے پروگرام کے تحت کی جا سکتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق امریکہ انسانی بنیادوں پر پناہ گزینوں کی آباد کاری کے علاوہ بھی دنیا بھر میں اس کرائسس سے نمٹنے کے لیے بہت سے اقدامات کر رہا ہے، اور اس کی ریفیوجی پالیسی کو ان اقدامات سے علیحدہ کر کے دیکھنا درست نہیں۔ نہ صرف غیر قانونی تارکین وطن کی امریکہ آمد کو روکنا صدر ٹرمپ کا ایک اہم انتخابی وعدہ تھا، بلکہ قانونی طور پر امریکہ آنے والے تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی تعداد میں کمی بھی موجودہ امریکی صدر کی پالیسی کا اہم فوکس رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی اس پالیسی کو دیکھتے ہوئے یہ بات کچھ اتنی حیرت انگیز نہیں ہونی چاہیے کہ اس سال امریکہ آنے والے پناہ گزینوں کی متعین کردہ تعداد امریکی تاریخ میں پناہ گزینوں کی آبادکاری کے پروگرام کی سب سے کم تعداد ہوگی۔ امریکہ میں مقیم پناہ گزین اور ان پناہ گزینوں کی مدد کرنے والی تنظیمیں صدر ٹرمپ کے اس اقدام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، شہناز نفیس کی رپورٹ سے جانتے ہیں۔ 28 سالہ راشد رقیب افغانستان میں امریکی فوجیوں کے ساتھ مترجم کے طور پر کام کرتے تھے۔ انہیں 2018 میں اپنی جان بچانے کی خاطر افغانستان سے امریکہ آنا پڑا۔ کئی گھنٹوں کا انتظار کروانے کے بعد انہیں ایئرپورٹ سے بالآخر باہر آنے کی اجازت تو ملی، لیکن یہ ایک نئے ملک میں ان کی مشکلات کا محض آغاز تھا۔ 7 دنوں تک میں نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کے بعد یہاں رہنے والے کچھ افغان آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے میرا تعارف پناہ گزینوں کی مدد کرنے والی کیتھولک چیریٹیز سے کروایا۔ انہوں نے مجھے قانونی معاملات میں مدد فراہم کی، بنیادی ضروریات کی چیزیں مہیا کی، مجھے رہنے کے لیے جگہ دی اور یہاں تک کہ روزگار ڈھونڈنے میں بھی میری مدد کی۔ واشنگٹن ڈی سی میں قائم کیتھولک چیریٹیز نامی ادارہ 1981 سے امریکہ میں پناہ لینے والے راشد رقیب جیسے افراد کو مدد فراہم کر رہا ہے۔ ہم نئے آنے والے پناہ گزینوں کو بنیادی سہولتیں مثلا خوراک، کپڑے، رہنے کی جگہ، جیب خرچ دیتے ہیں اور روزگار ڈھونڈنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر کا تعلق لاطینی امریکہ، ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطیٰ سے ہوتا ہے۔ سامی کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے امریکہ آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں کٹوتی کی وجہ سے اس وقت وہ ماہانہ صرف 35 پناہ گزینوں کو مدد فراہم کر رہے ہیں، جو اس ادارے کے قیام کے بعد سے کم ترین تعداد ہے۔ ادھر ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق امریکی قوانین میں موجود خامیوں کے باعث بعض پناہ گزین نظام کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثلاً ہزاروں افراد معاوضہ ادا کیے بغیر صحت کی سہولتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تاہم ریفیوجی انٹرنیشنل کے صدر ایرک شوارٹز کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی پناہ گزینوں سے متعلق اپنی پالیسی کے دفاع میں یہ وجوہات بڑی حد تک بے بنیاد ہیں۔ All the evidence indicates that refugees and immigrants generally تاریخ گواہ ہے کہ پناہ گزینوں اور تارکین وطن نے امریکہ میں اقتصادی ترقی کو فروغ دیا ہے، اور اس کے ثبوت موجود ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیشہ امریکی قوانین کی پاسداری کی ہے، اور پھر امریکہ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کی مدد کرے جو ان حالات سے متاثر ہو رہے ہیں جو انہوں نے نہیں بنائے۔
सामी कहते हैं कि पनाह गुज़ीनों से मुतल्लिक सदर ट्रंप के ख्यालात जंग अजीम दोइम के बाद से तमाम अमरीकी सुदूर के ख्यालात के बरक्स हैं। इस वक्त अमेरिका में मौजूद पनाह गज़ीनों के बच्चे, बीवी और ख़ानदान के दूसरे अफराद अपने आबाई मुल्कों में अमेरिका आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो दो ममालिक के दरमियान मुनक़सिम हो चुके हैं। इसके अलावा पनाह गुज़ीनों की मदद करने वाले इदारों को मिलने वाले फंड्स में कमी हो रही है। यहाँ पर काम करने वाले बहुत से लोग रोज़गार खो चुके हैं। पनाह गुज़ीनों की मदद करने वाले इन इदारों के नेटवर्क्स और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँच रहा है, जिसके बनने में लंबा अरसा लगा है। सदर ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं, अगर ये जारी रहा तो मुझे फैमिली को यहाँ लाने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन हो सकता है कि ट्रंप की सोच में तब्दीली आए। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। एक तरफ तो दुनिया भर में अपने मुल्कों, अपने घरों से दरबदर हो जाने वाले पनाहगज़ीनों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, और दूसरी जानिब वो ममालिक जो माजी में रेफ्यूजीज़ की आबादकारी का बड़ा बोझ उठाते रहे हैं, उनकी जानिब से मुहाजिरीन को लेने में हिचकिचाहट नज़र आती है। सबा शाह खान बता रही हैं कि अमरीका आने वाले पनाहगज़ीनों की तादाद में कमी पर जहाँ रेफ्यूजीज़ के लिए काम करने वाले आलमी इदारे और इंटरनेशनल कम्यूनिटी परेशान है, वहीं अमरीका के अंदर से भी इस हवाले से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। सदर ट्रंप की हुकूमत के पहले 3 सालों में अमेरिका की जानिब से लिए जाने वाले पनाह गुज़ीनों की तादाद में बड़ी कमी से इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ खुद अमेरिका के अंदर भी शदीद तशवीश पैदा हुई है। 2019 में इंतजामिया ने 30,000 की नई कम तरीन सतह मुकर्रर की, जबकि हमारी इत्तलात के मुताबिक 2020 के बाद इंतजामिया इसे कम करके 0 करना चाहती है। और यही वजह है कि मेरेडिथ ओवन की तंजीम मुख्तलिफ कम्युनिटी लीडर्स और पनाह गुज़ीनों के साथ मिलकर अमरीकी कानून साजों पर जोर डाल रही है कि रेफ्यूजी रीसेटलमेंट प्रोग्राम को ख़त्म ना किया जाए। इस प्रोग्राम के तहत अमरीकी हुकूमत दुनिया भर से पनाह की दरख्वास्त करने वाले अफराद के केसेस के जायजे के बाद उन्हें अमरीका लाकर बसाने का काम करती है। हम देख रहे हैं कि ये इंतजामिया किस तरह पनाहगज़ीन खानदानों पर असरअंदाज हो रही है। खानदान बिछड़े हुए हैं और दूसरे मुल्कों में मुश्किल हालात में बेयारो मददगार पड़े हैं। इनमें इराकी पनाहगज़ीन क़साई हुसैन भी हैं। वो स्टेडियम में वॉलीबॉल खेल रहे थे, वो शिकार बने जिसमें उनकी आंखें और चेहरा तबाह हो गए थे। वो इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में ज़ेर तालीम है। आज क़साई अमरीकी अवामी नुमाइंदों को अपने जैसे रेफ्यूजीज के इशूज़ पर आवाज़ उठाने के लिए कायल करने की कोशिशों का हिस्सा हैं। आपको हर मुल्क में कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग मिलेंगे, तो हमें अच्छे और बुरे पनाहगज़ीनों में तफरीक करनी होगी। 2016 में रेफ्यूजी प्रोग्राम के तहत आने वालों में मुसलमान पनाहगज़ीनों की तादाद सबसे ज्यादा थी, यानी 46%, जबकि 2019 में 79% क्रिश्चियन रेफ्यूजीज अमेरिका आए। लेकिन जब से ये नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, मुसलमान बहुत कम हो गए और हम मोस्टली क्रिश्चियन ग्रुप्स देख रहे हैं। कॉन्गो से आने वाले और दूसरी जगहों से आने वाले। वेरी रेयरली हियर एंड देयर यू सी अ मुस्लिम फैमिली कम नाउ। इस साल अमेरिका लाए जाने वाले पनाहगज़ीनों में 264 पाकिस्तानी भी हैं। पनाहगज़ीनों की तादाद में कमी की एक बड़ी वजह ये भी बताई जाती है कि सदर ट्रंप अपने अमेरिका फर्स्ट के वादे पर इलेक्शन जीते और रिपब्लिकन सपोर्टर्स में से सिर्फ 26% के ख्याल में अमेरिका की जिम्मेदारी पनाहगज़ीनों की जानिब बनती है, जबकि 51% डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स पनाहगज़ीनों को अमेरिका में पनाह देने के हक में हैं। ताहम ऐवान के दोनों ही जानिब अमरीकी कानून साजों की अक्सरियत अमेरिका आने वाले पनाहगज़ीनों की तादाद बढ़ाने के हक में है। हम तारकीन वतन की और मौक़े देने वाली कौम हैं और हमें ऐसे ही अमल करना चाहिए। हम इंतज़ामिया को पनाहगज़ीनों की हद बढ़ाने के लिए कहते रहेंगे। अब भी मेरी बहन वहाँ इंतजार कर रही है। उसे 6 साल से ज्यादा हो चुके इंतजार करते हुए कि उसे पनाह मिले। जैद और उन जैसे बहुत से खानदान अमेरिका में पनाहगज़ीनों का दाखिला 0 होने की सूरत में शायद फिर कभी यकजा ना हो पाए। यही वजह है कि अमेरिका में पनाहगज़ीनों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाले इदारे इसे तबाहकुन करार दे रहे हैं। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। अमेरिका में पनाह लेना आसान नहीं है। वैसे भी अपना घर बार और कामकाज छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करना एक मुश्किल काम होता है। इमरान जदून हमें लेकर जा रहे हैं अमेरिकी रियासत जॉर्जिया, जहां एक कॉफ़ी शॉप पनाहगज़ीनों के लिए ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश कर रही है। रियासत जॉर्जिया का शहर क्लार्कस्टन एक ऐसी जगह है जहां 40 से ज़्यादा कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले और 60 से ज़्यादा मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले अफराद बसते हैं। इसलिए इसे अमेरिका का सबसे मुतनव्वो इलाका भी कहा जाता है।
کیٹی مری اس علاقے میں ایک کافی شاپ کی مالک ہے، لیکن یہ کوئی عام کیفے نہیں ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں صرف پناہ گزینوں کو ہی ملازمت دی جاتی ہے، کیونکہ کیٹی پناہ گزینوں سے جڑے کچھ دقیانوسی خیالات کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ دنیا پناہ گزینوں کو منفی نظر سے دیکھتی ہے، مثلاً انہیں کبھی ایک بوجھ یا پھر کبھی بہت خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ یہ سچ نہیں ہے۔ ریفیوج کافی نامی اس دکان پر 1 سال کی ملازمت کی تربیت کے دوران انگریزی زبان سکھائی جاتی ہے اور پناہ گزینوں کی تربیت کے کئی پروگرامز بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ سمیہ مقصودی ایک پناہ گزین ہے جن کا کام کافی بنانا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے لیے یہ جگہ گھر سے دور ایک گھر کی طرح ہے۔ میں نے خود کو جانا ہے اور خواب دیکھنا یہاں سیکھا ہے۔ لکھنا پڑھنا اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا بھی یہیں سیکھا ہے، ورنہ امریکہ میں تو میں کہیں گم ہی ہو جاتی۔ سمیہ کی طرح ملک الارماج بھی پہلے اس ریفیوج کافی شاپ پر کام کرتے تھے۔ ملازمت کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد انہیں ایسے پروگرامز میں شامل کیا گیا جس کی مدد سے وہ اب کیٹرنگ کا اپنا کامیاب کاروبار چلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ریفیوج کافی شاپ اور کیٹی مری کے بنا ممکن نہیں تھا۔ سب سے پہلے میں نے انگریزی سیکھی اور اپنی کمیونٹی کو جانا۔ مجھے ایسے پروگرام میں شامل کیا گیا جہاں میں نے کاروباری مہارت حاصل کی اور ایسے افراد سے ملاقات کی جو وہی کام کر رہے تھے جو میں کرنا چاہتا تھا۔ ریفیوج کافی شاپ میں میرا تجربہ بہت اچھا رہا اور اب ہم سب دوست بن کر ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں۔ ریاست جورجیا کے شہر کلارکسٹن کی متنوع آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کیٹی مری یہاں آنے والے پناہ گزینوں اور یہاں پہلے سے رہنے والوں کے درمیان فاصلے کم کرنا چاہتی ہیں۔ ہم لوگوں پر محنت کرنا چاہتے تھے اور اس کوشش کی اچھی بات یہ ہے کہ ہم ریفیوجی کمیونٹی کے لیے کام نہیں بلکہ ان کو ساتھ لے کر کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں کام کرنے والوں کا اطمینان دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس مقصد میں کامیاب بھی ہو رہی ہیں۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، کلارکسٹن، جورجیا۔ مریم نواز کا کہا ہے کہ جان بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے ان کے والد کی، اور اگر انہیں علاج کی ضرورت سے بیرون ملک بھی جانا پڑتا ہے تو انہیں ضرور جانا چاہیے۔ اس خبر کی تفصیل آپ جان سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر، اور اس پر آپ کی کیا رائے ہے وہ بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ آج 8 نومبر ہے۔ گزشتہ سال اسی دن لگنے والی آگ نے ریاست کیلیفورنیا کے متعدد پہاڑی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جنگل میں لگنے والی اس آگ نے 50,000 سے زیادہ افراد کو بے گھر کر دیا، جبکہ 84 افراد کی جان بھی لی۔ ایک طرف جہاں اس آگ سے پھیلنے والی ہنگامی صورتحال انتظامیہ کے لیے نئی تھی، وہیں بے گھر ہونے والے سفید فاموں کی اکثریت کے لیے بھی یہ پہلا موقع تھا کہ انہیں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ 1 سال بعد ایک طرف جہاں اس آگ سے تباہ ہونے والے سفید فام اس کو یاد کرتے ہیں، وہیں علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کے نزدیک اس آگ نے ایک ایسی مثبت روشنی پھیلائی ہے جس سے انہیں پہچان کے لیے مدد ملی۔ کیسے، یہ جانتے ہیں نخبت مالک کی رپورٹ میں۔ 8 نومبر 2018 ریاست کیلیفورنیا کے علاقے پیراڈائز کے رہائشیوں کے لیے عام دن کی طرح ہی شروع ہوا تھا۔ ہمیں کوئی وارننگ نہیں ملی تھی، کوئی الرٹ موصول نہیں ہوا۔ ہم نے صرف کالے بادل دیکھے۔ ایک دوست نے کہا کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن ہم نے سوچا یہ تو پاگل پن ہے۔ مجھے پتا تھا کچھ ہونے والا ہے۔ سرخ رنگ کا آگ کا بگولا تھا، مجھے وہ سرخ رنگ میرے گھر کے پیچھے دکھائی دے رہا تھا۔ صبح 6:30 کے قریب لگنے والی جنگل کی یہ آگ پیراڈائز سمیت دیگر کئی علاقوں میں تیز ہوا سے اتنی تیزی سے پھیلی کہ سوزن اور کٹرینا جیسے یہاں آباد ہزاروں سفید فام رہائشیوں کو ہنگامی بنیادوں پر ہوائی راستوں کے ذریعے قریبی شہر چیکو پہنچانا پڑا۔ ان میں کئی ایسے افراد تھے جن کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں تھی یا ان کی انشورنس مکمل نہیں تھی۔ ہماری کاؤنٹی سروسز کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی تھی۔ چیکو میں جہاں آبادی کی اکثریت سفید فاموں کی ہے، وہیں کچھ عرب اور ایرانی نژاد امریکی مسلمان افراد بھی آباد ہیں۔
जबकि पाकिस्तानी अमेरिकन खानदानों की तादाद 20 के लगभग है। ऐसी ही एक खातून रुबीना खान और उनके शौहर ने मुतासरीन की मदद करने का बेड़ा उठाया। सबसे पहले मैंने एक्चुअली राशा को की कि सिस्टर गेट रेडी, हमें बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ा डिजास्टर ये हो गया है, लेकिन अभी लोगों को पता नहीं। तो ऐसे ही हमने फिर ये शुरू किया, लेकिन हमें खुद भी ऑनेस्टली आइडिया नहीं था कि इट्स सो सीरियस। We were giving out clothing, toilet. हमने कपड़े, खाना, टॉयलेट की चीजें, गिफ्ट कार्ड्स लोगों को बांटे। यहाँ तक कि ऐसे अफराद के लिए फर्नीचर और किचन की अशिया ली जिन्हें रहने को कहीं जगह मिल गई थी। आप जिस भी चीज का नाम ले, हमने सब इकट्ठा किया और लोगों में तकसीम किया। We were getting kitchen items, you name it, we pretty much collected and gave. पैराडाइज से चीको पहुंचने वाले लगभग 26,500 अफराद पर मुश्तमिल आबादी का बड़ा हिस्सा सीनियर सिटीजन्स पर मुश्तमिल था। It's about 20 miles away from पैराडाइज का इलाका यूं तो चीको से 20 मील दूर है, लेकिन इसे पहाड़ी इलाका कहा जाता है और यहाँ रहने वाले कभी पहाड़ से नीचे उतरे ही नहीं थे, इसलिए उनका हमारे साथ रहना बहुत मुश्किल था। living among us was hard for them. Everybody starts out over. इमदादी सामान की इस तकसीम का इंतजाम चीको में कायम इस्लामिक सेंटर में किया गया था। इस इस्लामिक सेंटर में एक मस्जिद भी है। For a lot of them, they've never. इनमें से बहुत से अफराद ऐसे थे जो कभी मस्जिद के अंदर दाखिल ही नहीं हुए, बहुत से ऐसे जो कभी मुसलमान से नहीं मिले, कुछ तो ऐसे थे जो कभी किसी अरब या पाकिस्तानी से भी कभी नहीं मिले थे, इसलिए उन्हें फर्क ही मालूम नहीं था। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, मुझे कई नस्ल परस्तों से वास्ता पड़ता था, वो मुझसे सवालात करते थे। रुबीना और राशा ने मिलकर 3 महीने तक मुतासरीन की मदद की। लगभग 1,54,000 एकड़ जमीन जला देने वाली और 84 हलाकतों की जिम्मेदार इस आग को 1 साल बाद चीको के मुस्लिम रिहायशी तकलीफ से याद जरूर करते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें कुछ हासिल कर लेने का एहसास भी है। यहाँ इस इलाके में हमारी जिंदगियों की हकीकत तब्दील हो गई है। हम मुस्लिम्स एक ऐसी कम्युनिटी थे जो पैराडाइज, मेगेलिया, कांको और इन सब जलने वाले कई इलाकों से कटी हुई और बिल्कुल अलग थलग रह रही थी, लेकिन अब हम खुद को सबके साथ बराबर महसूस करते हैं। पैराडाइज के लोग और चीको के शहरी अब हमें एक मुख्तलिफ किस्म का मुसलमान समझते हैं। पहले भी ठीक था, लेकिन अब हम पहचाने जा रहे हैं। मुसलमानों से मुतालिक जो सियासी तनाज़ात और मामला दुनिया में बयान किए जाते हैं वो इस इलाके में भी थे, इसलिए हम सामने ही नहीं आते थे, लेकिन अब ये इलाका रिहाइश के लिए पहले से कहीं बेहतर हो चुका है। I think had made our town a better place to live in. और उससे ये हुआ कि जो लोग हमें सिर्फ इसी बात पे जानते थे कि मुस्लिम may be a terrorist, they saw first time a Muslim is like any other human being and they care for humanity. Religion is the second, humanity is the first. नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, चिको, कैलिफोर्निया। वाशिंगटन डीसी में मौजूद कैनेडी आर्ट सेंटर में एक अनोखी नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है और वो है अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बनाई गई तस्वीरों की कलेक्शन। साबिक फौजी अफसरों की ऑयल पेंटिंग से बनाई गई कुल 66 तस्वीरों की नुमाइश रवां मौसम ख़ज़ां में की जाएगी। इस नुमाइश को बहादुरी के पैकर का नाम दिया गया है और पेंटर हैं अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ये नुमाइश कैनेडी सेंटर वाशिंगटन में की जाएगी। इन सब को मुकम्मल करने में 1 साल लगा और जिस बारे में बात करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं वो इनको दरपेश चैलेंजेस नहीं हैं। चैलेंजेस का सामना तो उन्होंने किया ही, लेकिन इसके साथ साथ हम इनके अज़्म और कायदाना सलाहियतों को पेश कर रहे हैं जिसका मुजाहरा वो रोजाना करते हैं। सन 2009 में सदारती मनसब से फरागत के बाद सदर बुश ने खुद को साबिक फौजियों के लिए वक्फ कर दिया था और उन्होंने इनके लिए गोल्फ और पहाड़ों पर बाइक चलाने के मुकाबलों का इनकाद किया। मैंने फौज में 24 साल खिदमत सर अंजाम दी। मैं इराक और अफगानिस्तान में भी तैनात रहा। 27 जुलाई सन 2007 में इराक में मैं शदीद जख्मी हो गया। मेरी दाईं टांग कट गई। सदर बुश की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले बाइक टूर्नामेंट में मुझे 2 बार शिरकत का मौका मिला और इस तरह इस सब का आगाज हुआ। इन मौक़ों पर मुझे सदर बुश को जानने का मौका मिला जो हम सब के पोर्ट्रेट बनाने पर ख़त्म हुआ। सदर बुश कहते हैं कि उन्होंने फन के जरिए साबिक फौजियों को खिराज तहसीन पेश करने की कोशिश की है। वो इन तस्वीरों में मौजूद हर फौजी को ज़ाती तौर पर जानते हैं। कई लोग कह सकते हैं कि अमेरिका के सदर ने बजाते खुद इनका पोर्ट्रेट बनाया है। ब्रायन फ्लॉम सन 2007 में इराक में जख्मी हुए।
उनके सर पर लगी चोटें तो जल्द ही ठीक हो गईं, ताहम नफसियाती तौर पर इस सूरत हाल से निकलने में उन्हें वक्त लगा। उन्होंने माउंट बाइकिंग को थेरेपी के तौर पर लिया। और फिर मैंने सदर के साथ बाइकिंग के लिए अप्लाई किया और मुझे मुंतखब कर लिया गया। मैंने कई बरस बाइकिंग की। मेजर क्रिस्टोफर टर्नर कहते हैं कि सदर बुश की जानिब से मुनाकिद कराए जाने वाले इन इवेंट्स ने उन्हें अपने जंगी तजर्बात पर बात करने का हौसला दिया। सदर ने मेरी 2 तस्वीरें बनाई, एक दूसरे सिरे पर है जिसमें पस मंजर तारीख है और मेरा चेहरा मालूम होता है कि मैं मुर्दा हूँ, और ये तस्वीर जो मेरे पीछे है मेरी असल कहानी की अक्कासी करती है, और दूसरे सिरे पर मौजूद तस्वीर एक ऐसे शख्स की है जो मैं दोबारा कभी बनना नहीं चाहता। साबिक सदर की इस किताब का उन्वान है पोर्ट्रेट्स ऑफ करेज, एक कमांडर इन चीफ का अमेरिका की फौजियों को खिराजे तहसीन। इस किताब में हर तस्वीर के साथ सदर बुश ने उससे जुड़ी कहानी भी पेश की है। मैक्सिम मॉस्कोल्कोव के साथ सादिया ज़िब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। तो सदर बुश तो रिटायरमेंट के बाद पेंटिंग्स बना रहे हैं। अमेरिका के बाकी सदूर जब रिटायर होते हैं तो वो क्या करते हैं, इसमें नजर डाली हमारी साथी रम अब्बासी ने। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बाकी सदूर क्या कर रहे हैं। रम, तो क्या करते हैं बाकी सदूर रिटायरमेंट के बाद? अच्छा, सबसे पहले जिक्र करते हैं जिमी कार्टर का, जो कि सबसे लंबी उम्र पाने वाले पहले अमरीकी प्रेसिडेंट अब बन चुके हैं और उनकी उम्र 95 साल है, 95 साल उनकी उम्र है। और वो अभी भी जो है संडे स्कूल जाते हैं आफ्टर लाइफ के बारे में बात करने। उसके बावजूद वो रेगुलरली जो है फलाही कामों में साथ देते हैं, अपनी बीवी के साथ पेश रहते हैं। दोनों मियाँ बीवी ने मिलके कार्टर सेंटर बनाया है, जिसका मकसद इंसानी हकूक़ की बहाली के लिए काम करना है, और साथ ही साथ वो जो तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाले केयर गिवर्स होते हैं उनको जो है ट्रॉमा जो से वो गुजरते हैं या उनकी मदद करते हैं ज़िंदगी उनके लिए आसान बनाने के लिए, और उनको ये रियलाइज़ कराने के लिए कि किसी की मदद करना कितना बड़ा काम है। और उनकी बीवी के मुताबिक अब तक वो 40 मिलियन केयर गिवर्स जो US में हैं उनके साथ मिलकर काम कर चुके हैं और उनके लिए सहूलियात मुहैया करने की वो कोशिश करते हैं। साथ ही साथ उनको 2002 में इन्हीं सरगर्मियों की वजह से, अपने फलाही काम की वजह से नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया, और कुछ दिन पहले ही वो गिर गए जिसकी वजह से उनको 14 टांके लगे। लेकिन उसके बावजूद वो घर नहीं बैठे, वो एक तकरीब में आए जहाँ पे बैंडेज उनकी आंख पे लगा हुआ था। अब बात अगर हम ओबामा की करें तो ओबामा ने जो है पिछले साल जब उनकी पूरा साल तक अहम तकारीर दी, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो सेनेटर जॉन मैकेन का फ्यूनरल हो, वहाँ पर उन्होंने उनको खिराज तहसीन पेश किया। साथ ही साथ वो अब खुलकर प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है उनको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं उनकी बाज़ पॉलिसीज़ पे। और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पे उन्होंने, दोनों मियाँ बीवी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके मुताबिक अब वो दोनों फिल्में प्रोड्यूस करेंगे। जाते जाते एल गोर की बात करते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे और अपने क्लाइमेट चेंज के काम के लिए जाने जाते हैं। अपने वाइस प्रेसिडेंट जब वो थे उस दौरान भी, और उसके अलावा भी क्लाइमेट चेंज के लिए आगाही और एक शऊर पैदा करने में जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई और जिस तरह से वो पेश रहे, उनकी खिदमात को सराहते हुए उन्हें भी नोबेल प्राइज़ दिया गया 2007 में। दैट्स इंटरेस्टिंग। कम अज़ कम अमरीकी सदर जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद फलाही कामों में ज़रूर मौजूद हैं। जहाँ तक बाकी सदारतें हम देखते हैं बाकी ममालिक की, उनमें किस तरह से चलता है वो तो ऑनवर्ड्स हम आगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी शायद शामिल करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम पर फीडबैक देने के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैंडल है @urduvoa, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और अपना कंटेंट भी हमसे शेयर कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।